Assalamu alaikum. We're going to be starting off with a quadratic equations worksheet. इसमें last decade के जो important सवाल हैं जो repeat होते आ रहे हैं, we're going to be solving those. I've got Musa with me here today. Let's start off with the first question. Amira drives 40 kilometers to work, and Amira takes X minutes to drive the first 30 kilometers. So probably divide over your journey into two parts, and they're asking us to show that the average speed for the first 30 kilometers of the journey is 1800 over x. Ji Musa, what are we supposed to do? Sir, we will use the formula of speed is equals to distance over time. The distance is 30 kilometers and the time is x minutes. But it's saying to give the answer in kilometers per hours, but it's saying x minutes, so we'll multiply the equation by 60. Okay, ये भी ठीक है. और x minutes को अगर change करना हो into hours, can we divide it by 60 like this? Right? जी सर. तो अगर x over 60 लिख दें तो अगले स्टेप में ये क्या होगा, वही एग्जैक्टली वही चीज़ जो मूसा आप कह रहे हो, 30 इंटू 60 ओवर x हो जाएगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी 1800 ओवर x. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर दोज व्यूअर्स हु माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस. जब 30 डिवाइडेड बाय x ओवर 60 होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 60 ओवर x. इसलिए ये इक्वेशन बनी थी, ये कोई एक्सप्रेशन बना था. ऑलराइट, वेल डन. Is the second part linked to this? Yes, sir. Alright, क्या कहता है वो? Amira's average speed in kilometers per hour for the final 10 kilometer of the journey is 600 divided by x minus 25. Her average speed for the first 30 kilometer of the journey is 8 kilometer per hour, slower than her average speed for the final 10 kilometer. Form an equation in x and show that it simplifies to x squared plus 125x minus 5625 is equal to 0. Alright, perfect. Let me draw a number timeline. In fact, timeline भी नहीं है, ये distance into two journeys है. 30 kilometers and 10 kilometers, ये दो journeys है. और first वाले की speed क्या थी? 1800 over x. That was 1800 over x. और this is distance 2. इसकी speed 2 is if I'm not wrong 600 over x minus 25. तो ये Yes, यहाँ sir. लिख ली और इसका डिस्टेंस भी यहाँ लिख लिया. तो बेसिकली वी ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच डेटा एज पॉसिबल. अब हमने ये डेटा कलेक्ट क्यों किया है, बिकॉज हमारी जो फाइनल है, व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, जो इक्वेशन बननी है, दैट हैज़ टू फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड. क्यों? क्योंकि उन्होंने यही तो कंपैरिजन किया हुआ है कि किसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है. So what we're going to do is basically किसकी if it's 8 kilometers per hour slower, तो 30 किलोमीटर वाली जर्नी है, that is 8 kilometers per hour slower, right? तो किस वैल्यू को पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करते हुए? Sir, it will be 1800 plus 8. हाँ, यूं कर लो, यूं भी कर सकते हैं, और हम ये कहते हैं 1800 ओवर x माइनस 600 ओवर x ओवर 25, ठीक है, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 8, इज इक्वल्स टू 8. आप ये कह रहे हो कि इसको यहाँ प्लस कर लेते हैं और ये इसको यहाँ ले जाते हैं, वो भी बिल्कुल हो सकता है. तो बेसिकली सिनेरियो क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, कौन सी जर्नी? ये वाली जो 30 किलोमीटर्स वाली है. तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड कम होगी. तो नहीं, वेट, होल्ड ऑन Musa, would we be subtracting this speed or the other speed? Which one is going to be bigger? Sir, it says that the first speed, which is 1800 over x, is 8 kilometers slower than the final 10 kilometers. So if it's slower, the speed is less, right? Yes, sir. So then I think we should be writing this one first and the other one afterward. Does that match with your equation? Yes, sir, it does. I think it should be like this. It should be like this. क्योंकि जो स्लोअर स्पीड है वो छोटी है, वो कम है, तो वो यहाँ लिख दी, और जो दूसरी स्पीड थी वो ज़्यादा है तो वो यहाँ पहले लिख दी. क्योंकि whenever we subtracting, we subtract a smaller value from a bigger value.
और उसका आंसर क्या है, इसका मतलब है इज इक्वल टू और 8. ठीक है, चलो मूसा कैन यू लीड फ्रॉम हियर. Sir, we will take x to 600 and it will multiply. X minus 25 to 1800 it will multiply. And x will multiply with x minus 25 in the denominator. परफेक्ट. तो बेसिकली आपने एलसीएम लिया और एलसीएम था x इंटू एक्स माइनस 25. अब सिंस 600 के पास x नहीं था, ये वाला तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और 1800 के साथ x माइनस 25 नहीं था तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट. Next, we will simplify it's 600x minus 1800x plus 4005, 45,000. Three zeros. ठीक है. And we'll take x square minus 25x to 8 and it will multiply. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 25x यहाँ लेंगे. आई थिंक वी कैन ऐड दीज टू, राइट. Yes, sir. माइनस 1200x प्लस 45,000 is equals to 8x square minus 25x. I believe we can collect this Sir, entire side 200x. on this side. 200x, not 25x. Oh, okay. Perfect. Thank you for pointing that out. So this is 200x. अब सारा जो डेटा लेफ्ट पे है उसको कंबाइन कर लेते हैं राइट पे. तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 1200x minus 45,000. If you solve this further, this becomes 8x square plus 1000x minus 45,000. Yes, sir. अब इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे आएगा? Sir, we will divide it by 8. Divided by 8. So if we take 8 common, we're left with x square plus 125x minus, how much is it? Sir, I divided the whole equation with 8. तो वही हम भी वही कर रहे हैं. तो 45,000 में से अगर आप 8 फैक्टराइज कर लो या डिवाइड कर लो, दैट्स द सेम थिंग. व्हाट डज इट कम आउट टू बी? 5,625. हाँ, 5,625. अभी 8 वहाँ जाके बेसिकली जीरो ही हो गया क्योंकि जीरो से डिवाइड हुआ है. तो वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 5625. तो हेंस शोन वी कैन राइट दैट, हेंस शोन, बिकॉज ऊपर अगर आप याद करो तो हमारा यही हमने शो करना था कि हमारा ये आंसर आ रहा है. ठीक है. नाउ दे सेइंग सॉल्व द इक्वेशन. टिपिकल एक पार्ट होता है क्वेश्चन का कि पहले आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाते हैं, जो जब बन जाए तो दे से सॉल्व इट. हाउ विल वी सॉल्व इट मूसा? Sir, we will use the quadratic equation minus b plus minus square root b square minus 4ac divided all by 2a. Perfect. So this is the quadratic formula which is applicable on a quadratic equation. ठीक है, इसको फॉर्मूला कहते हैं और ये जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो वैल्यूज अगर इंपोर्ट करें तो व्हाट डू दे बिकम? Minus 125 plus minus square root 125 square minus 4 into 1 into 5625 divided all by 2. अच्छा, ये जो माइनस साइन है ये ट्रेवल साथ करके आएगा और ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी Yes. होता है कि जो सी की वैल्यू है उसके साइन के साथ लिखा जाए, बिकॉज वो फॉर्मूला के अंदर इनबिल्ट नहीं है. अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर, अच्छा 2a की वैल्यू मैं डालना भूल गया हूँ, 2 into 1 है. तो आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर वाचिंग ऑन दिस ऑन यूट्यूब मस्ट बी एबल टू डू दिस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं ये पहले क्वेश्चन में ये कर रहा हूँ. आपने कोशिश ये करना है सब कुछ प्लग इन नहीं कर देना कैलकुलेटर में, बिकॉज कैलकुलेटर बॉड मैथ्स लगाएगा और हो सकता है आपने कैलकुलेटर को प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा के ना दिए हो जिसकी वजह से आंसर मिसअप हो जाए. तो पहले आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको पहले सॉल्व कर लेना है. तो मूसा, डू यू हैव द ब्रेक डाउन फॉर दिस? 125 का स्क्वायर और सब कुछ है. Yes, sir. कितना है 125 का स्क्वायर? 15625 15625 और माइनस 4 Plus. इंटू दिस 22500 22500 ओवर 2. divided all by 2. हाँ, अब इसको यहाँ ले जाते हैं. तो वन आंसर वी गोना हैव विद माइनस 125
माइनस और ब्रैकेट इसके स्क्वायर रूट साइन के अंदर क्या आता है? 38125. 38125 ओवर 2, और दूसरा जो है दैट इज -125 प्लस और ब्रैकेट के अंदर वही 38125, राइट? Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये प्लस माइनस था ना, तो एक दफ़ा हमने माइनस के साथ सॉल्व किया, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व किया। तो इसका आंसर पहले वाले का क्या आता है? -160.15. -160.15, और दूसरे का 35.15. 35.15। तो वी कैन राइट these values over here, -160.15 and 35.15. Let's quickly confirm those answers as well. I think this is the first part. Yep, ये हमारा आंसर है, that's spot on, perfect. अच्छा, ये probability का क्वेश्चन लग रहा है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली probability क्वेश्चन, बिकॉज हमने इसके अंदर से वही पार्ट सेलेक्ट किया है which helps us in solving a quadratic equation. तो बेसिक क्वेश्चन वही है कि बैग में 12 बॉल्स हैं, एक्स ब्लैक है, दूसरी वाइट है, तो एक्स की टर्म्स में चल रहा है। जब भी एक्स की टर्म्स में चल रहा हो क्वेश्चन, मोस्टली इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स गोइंग टू फॉर्म। तो 2 balls आर टेकन एट रैंडम, या वो स्टोरी लाइन बता रहा है, या बेसिकली बता रहा है कि एक पहला इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट क्या है जो आपने करना है। जो पार्ट हमने चूज किया है वो ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ब्लैक बॉल्स आर टेकन इज 14/33। तो कह रहा है इक्वेशन फॉर्म करो एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दैट देयर आर, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ, फॉर्म एन इक्वेशन इज एक्स एंड सॉल्व टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हाँ, ब्लैक बॉल्स ही फाइंड करनी है। जी मूसा, कैन यू लीड नाउ? Yes, sir. Sir, it says that both of them should be black. The first one and the second one should both be black. So it will be x, and it should equal to 14 divided by 33. ओके, So it will be x divided by 12 into x minus 1 divided by 11 is equals to 14 divided by 33. okay. Now we're going to multiply this. X square minus x divided by 132 is equals to 14 over 33. Well done. We will take 132 to the other side and it will multiply, which will is equals to 56. और 33 को इस तरफ ले आऊं कि उधर ही रहने दूं? So you can keep it over there and multiply it with the 14 divided by 33. अच्छा चलो, तो I'm going to write x square minus x over here. I'm going to let it be over here. And basically you're saying 14 divided by 33 के साथ जाके 132 multiply कर दें. What does it come out to be? 56. All of this? Yes. Okay, now x square minus x minus 56 is equals to 0. Yes, sir. Now they're asking us to solve this to find the value of x and hence find the total number of black balls that there are. अब क्या करेंगे? No, sir, it only tells us to solve till here. Till here, that's it. Yes. I think It only says form an equation. form an equation and then they're asking us to solve it. इसको solve भी करना है, तो quadratic formula लगा लें या mid term breaking कर लें? Mid term breaking इसकी हो पाएगी या मुश्किल है? So it's better to do with a quadratic equation. Midterm breaking, it will take longer to find the. हाँ ट्रू, बट इस किस्म का जब बहुत बेसिक क्वेश्चन हो ना तो ट्राई किया जा सकता है। तो लेट्स से 56 इज आवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आता है। जो पहला नंबर है दैट्स 1, दूसरा नंबर इज 56, तो -56 हमारा प्रोडक्ट है। सम होता है कि ये जो मिडिल में नंबर है ये वाला, ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई होके -1 आए, सॉरी ऐड होके -1 आए और मल्टीप्लाई होके -56 आए। 56, तो हम क्या करते हैं 56 के फैक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं। 1 इंटू 56, 2 इंटू कितना होता है 56, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 बन जाए? 28. 28, 3 से मेरा नहीं ख्याल ये होता है, 4 नहीं, 4 से होता है, 4 इंटू 4 से शायद हो 14. 14. कंफर्म करते चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी भी हमारा देखो कोई ऐसा नंबर नहीं आया जिनका डिफरेंस 1 हो, तो उसके बाद 5 है, फिर 6 है, 7 इंटू 8. 8,
ये यूज़ हो सकता है। अब इसके अंदर बताओ कि हम किसकी वैल्यू नेगेटिव रखना चाहेंगे, 8 की, क्योंकि हमारा आंसर जो है ऐड होके -1 आना चाहिए। तो -8 + 7 करेंगे तो -1 आएगा, और -8 × 7 करेंगे तो -56 भी आएगा। तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो जो आप कह रहे थे, और इस तरह भी कर लेते हैं सो दैट द व्यूअर्स अंडरस्टैंड अनदर मेथड इज वेल। तो -8x + 7x -56, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। Why is it called mid term breaking? Because you're basically breaking down the middle term into two parts. आप उसको -8x + 7x लिख रहे हो। तब जब चार टर्म्स बन जाए, टर्म किसे कहते हैं जो प्लस माइनस के बाद लिखे हो, 1 2 3 4, जब चार टर्म्स बन जाए यू डू मिड टर्म ब्रेकिंग, सॉरी यू डू फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब आपने इन दो का ग्रुप बना लिया, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x -8, दूसरे में से क्या कॉमन आ सकता है, 7, तो x -8। अब आपको यूं भी पता चल जाएगा कि आंसर आपका ठीक आ रहा है कि ये दो मैच कर जाए, ठीक है। अब x + 7 इन वन ब्रैकेट, ये दो चीज़ें, और x -8 को एक दफ़ा लिख देते हैं, तो वी गेट x + 7 = 0 और x -8 = 0। x की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 8, ये दो हमारे आंसर्स आए हैं। अब x शुरू में मूसा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, Sir, it represents the black balls. जबरदस्त, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, कैन द नंबर बी नेगेटिव, No, sir. नो, तो इट मस्ट बी 8, इट मस्ट बी 8 ब्लैक बॉल्स, बिकॉज एक क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर Sir, it only solves till the. फिर प्रॉबेबली मार्क्स की में कोई इशू है, बिकॉज वैसे आंसर हमारा 8 ही ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो देखो, अगर कह रहा था कि सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वी फाउंड दैट आउट एंड दैट इज 8, बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, और 8 का एक झलक हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है, ये दैट गोज टू शो दिस इज करेक्ट। एनीवेज हमारा आंसर इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू लीड फ्रॉम हियर। The diagram shows an open box in the shape of a cuboid. The height of the box is x centimeter. The width of the box is 5 centimeter more than its height. The length of the box is 2 times its width. Write down the expressions in terms of x for the width and the length of the box. It says the length of the box is 2 times its width, and the width is 5 centimeter more than its height, and the height is x. So width will be 5 plus x. Length of the box will be 5 plus x, all of it into 2. ठीक है, तो इफ यू सॉल्व इट वन बाय वन, ये तो गिवन है। जो सेकंड आपने बताया x + 5, वो ये है, एंड दैट्स द विड्थ। तो विड्थ चौड़ाई को कहते हैं, तो दिस इज द विड्थ। एंड लास्ट थिंग दैट यू मेंशनड वाज कि आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल। तो 2 × 5 + x, जो हमारी विड्थ आई थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक आंसर्स भी हमारे यही हैं। Yes, sir. तो विड्थ यहाँ पे ये आई गेस कोई मिस प्रिंट हो गया, विड्थ इज बेसिकली 5 + x, एंड द लेंथ इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो व्हाट डज इट बिकम, 10 plus 2x. 10 + 2x, and that's our answer for length and width. The external surface area of the open box is 210. Form an equation and show it simplifies to this. एक्सटर्नल सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि हर साइड को डिफरेंट सेपरेटली ऐड करोगे एरिया निकाल के? एक्सटर्नल सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला इनपुट करेंगे और सारे साइड्स को ऐड करेंगे। चलो परफेक्ट। तो 210 याद रखना, 210 यहाँ लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं शेड करता हूँ और आपने मुझे सिर्फ उसी जगह का एरिया बताना है। एक ये वाली वॉल और इस एक ही वॉल का भी एरिया बता दो, ग्रीन वाली वॉल का। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? What two values multiplied together, width and the height, right? Yes, sir. तो इस ग्रीन वॉल का एरिया आएगा x इंटू 5 + x, बिकॉज यही ग्रीन वॉल यहाँ पे भी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, दिस एंटायर एक्सप्रेशन दैट वी जस्ट फॉर्म्ड बाय 2। ठीक है, अब मूसा में आपके पास जो फॉर्मूला वाला मेथड है वो भी अभी आपसे पूछता हूँ। 2 × x × 5 + 2। अब हमारे ये दो ग्रीन एरियाज आ गए
what can we do now? We are going to find the is this an open box or a closed box? It's an open box. It's an open box. तो ये सिर्फ ग्रीन पार्ट बेस वाला हम एरिया अगर आप निकालें तो वो कितना आएगा? Length into width. लेंथ इंटू वेट 10 प्लस 2x इंटू 5 प्लस x, और इसको भी ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं. अब जो हमारा एक ही एरिया रह गया है, दैट्स इनफैक्ट दो साइड रहती हैं, ये वाला. तो मैं फ्रंट वाले को शेड नहीं करता बिकॉज ये कंफ्यूजन कॉज करेगा. मैं आई शेड द वन एट द बैक. इसका एरिया निकालने के लिए कौन सी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे? Length into height. वेल डन. तो 10 प्लस 2x इंटू x, और इसको भी हमने टाइम्स 2 करना है. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये फ्रंट पे भी यही वैल्यूज हैं, तो इसको हम टाइम्स 2 करेंगे ये यूं. इफ एंड व्हेन वी सॉल्व दिस, उन्होंने क्या कहा था? टोटल सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 210. 210. वी गोना पुट दिस इक्वल्स टू दिस, और ये भी रेज कर देते हैं बिकॉज वी नीड सम स्पेस. या चलो इसको नीचे ले जाते हैं, वहां सॉल्व कर लेते हैं. चलें जी, लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर एंड सी इफ द आंसर फॉर्म्स जो उन्होंने कहा हुआ है. कैन यू लीड फ्रॉम हियर नाउ? Yes, sir. Sir, when we simplify, it will become 2x square. चलो फिर लेट मी सिंप्लीफाई इट. 2x square plus 50. Okay, sir. 50 प्लस 10x प्लस 10x प्लस 2x स्क्वायर, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट्स 10x प्लस 2x स्क्वायर और इंटू 2 is equals to 210. So this is 10x plus 2x square plus 50. We're going to open up the brackets. Plus 20x plus 2x square plus 20x plus 4x square is equals to 210. अब यहाँ से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो बिकॉज वी रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो क्या बनता है? 4x स्क्वायर आप क्या कह रहे थे? Sir, 210 is equals to 8x square plus 50 plus 50x. ठीक है. ये 210 is equals to 8x square plus 50 plus 50x 50x, yes. equals to 210, and we can bring this over here now. What will it become? 8x square plus 50x plus, sorry, minus 210 minus 50, right? Yes, sir. Minus 160. Minus 160. Minus 160 is equals to 0. उन्होंने जो कहा था दैट वाज 4x स्क्वायर प्लस 25x. अब हमने ये फिगर आउट करना है कि यार 8 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 बन जाए. वी गोना टेक 2 कॉमन. 2 परफेक्ट. तो 4x स्क्वायर, अब 2 कॉमन लिया तो तमाम वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर दिया, और ये 2 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होता है और वो वैल्यूज़ की ख़त्म हो जाती है. तो 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इज इक्वल टू 0. हेंस शोन. ठीक है. सॉल्व द इक्वेशन एंड शो योर वर्किंग. अब वंस अगेन क्वाड्रेटिक Equation. फार्मूला. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये ऊपर फॉर्म हुई हुई है. ठीक है. नाउ वी गोइंग टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑन इट टू फाइंड द आंसर्स. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. वैल्यूज प्लग इन करवा दो और आंसर्स निकलवा देते हैं. वी वोंट डू मच स्टेप्स ओवर हियर बिकॉज वो हम पहले कर चुके हैं. तो वैल्यूज क्या है? Minus 25 plus minus square root 25 square minus 4 into 4 into minus 80 शाबाश. divided all by 2 into 4. Well done. If and when we solve this, what do we get? We're simply going to tell them the answer. 2.33 and 8.58. शाबाश शाबाश शाबाश. तो अगर those of you who were looking forward for a solution, previous questions में चले जाओ and you'll be able to see हमने उसको सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप. बिकॉज आप जब सारी वैल्यूज इनपुट करते हो तो वहाँ पे इशू बनता है. सारी वैल्यूज इनपुट नहीं करनी एक साथ कैलकुलेशन में, वहाँ पे इशू आता है. अच्छा, दिस वाज माइनस 8.58, राइट? Yes, sir. ओके.
We have a similar question to the one we did at the start. On Monday, Ravi goes on a 20-kilometer run. His average speed for the first 12 kilometers is x. Write down expression in terms of x for the time taken for the first 12 km. बताओ. Speed is equals to distance over time. The distance is 12 km. Speed is x. So, so it will be 12 over x. But it says we have to write it in minutes. So we'll multiply it by 60. ठीक है. तो in terms of x कह रहे हैं और for the time taken, time निकालना. तो time is distance over speed, no? और हमारा first 12 Yes, किलोमीटर sir. हमारा distance है. 12 over speed कितनी है? X x. और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 60. 60 से, क्योंकि ये किलोमीटर्स में है और स्पीड जो है वो भी किलोमीटर्स पर आवर में है. तो अभी तक सारा आंसर हमारा आवर्स में आ रहा था. हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट 720 ओवर x. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. हाँ. अच्छा, ये 12 इंटू 60 ओवर एक्स ओ ई का बेसिकली ये मतलब है. ओ ई स्टैंड फॉर और इक्विवेलेंट. तो आपका ये आंसर 720 ओवर एक्स भी ठीक है और जो मार्क्स की में गिवन है वो भी सही है. Next जी, the average speed for the final 8 kilometers. अब let me divide the journey into two parts. हमारा 20 किलोमीटर का रन है. उसमें से जो पहले 12 किलोमीटर्स हैं उसकी कैलकुलेशन ऊपर की है और दूसरा 8 किलोमीटर की आप कैलकुलेशन करेंगे. उसकी स्पीड कितनी थी? X x. और टाइम था 720 ओवर x. इसकी स्पीड कितनी है? 1.5 minus x. 1.5 किलोमीटर स्लोअर. x minus 1.5. x minus 1.5, राइट? Yes, sir. और उसका अब टाइम कितना आएगा? Sir, time we have to find. टाइम हमने फाइंड करना है. तो क्या तरीका है, क्या इक्वेशन बनेगी? So it will become time is equals to 8 over x minus 1.5 and all of it multiplied by 60. Well done, well done. The 8 into 60 is 480. 480 over x minus 1.5. ये हमारा आंसर है. That's completely perfect. Ravi takes 10 minutes to complete the full 20 kilometers. अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट कर रही है वो भी बहुत ज़रूरी है. क्यों? बिकॉज आपने जो प्रीवियस दो आंसर्स आए होते हैं उन्हीं को ही लिंक करना होता है इसके साथ टू फॉर्म एन इक्वेशन. तो 110 मिनट गिवन है, तो ना ये स्पीड है ना ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. और आपने ऊपर भी क्या कैलकुलेशन की है? ये भी टाइम की कैलकुलेशन थी, ये भी टाइम की कैलकुलेशन थी. टोटल कह रहे हैं 110 मिनट्स लगे हैं. तो मूसा, वुडंट वी ऐड दीज टू 720 ओवर x प्लस 480 ओवर x माइनस 1.5 एंड इक्वेटेड टू 110. 110. शाबाश. अच्छा, अब सिंस इट्स सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैन यू लीड फ्रॉम हियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे? We will take x minus 1.5 to 720 and x to 480 and in the denominator multiply x with x minus 1.5. परफेक्ट. तो बेसिकली आपने कहा है कि एलसीएम लेना है और एलसीएम के अंदर जो वैल्यूज जिस न्यूमरेटर के पास मिसिंग है उनको असाइन कर दें. तो 7. अब मुझे यार वैल्यूज चाहिए सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम. क्या आंसर आता है इसको एक्सप्लेन? 720 इंटू एक्स, 720 इंटू 1.5, ये क्या आंसर है? Sir, it becomes 720x minus 1080 plus 480x is equals to 110x square minus 165x. ये क्विकली 165. कैन यू क्विकली चेक कि मैंने सारा सही लिखा है? Yes, sir. चलो, अब इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो इस वैल्यूज को भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, इस वैल्यू को भी इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाता है? So it becomes 1200x minus 1080 plus 165x minus 110x square. ठीक है. 110x स्क्वायर और कौन कौन सी वैल्यूज x के अंदर 165 के अंदर प्लस हो रही हैं? वो 165 के अंदर जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं ना, जो दो, वो ऐड करके बता दो. एक ये वाली और एक ये वाली जब इसमें ऐड होती है तो क्या बनता है? So it becomes 1
1365. 1365x and plus 1080. Am I correct? Yes, sir. Now, what do we factorize? या जिस तरह आप comfortable हो, what do we divide this entire equation by? 5. 5. तो 5 factorize कर लेना या divide कर लेना, same thing. अंदर रहेगा 22x square minus, अच्छा wait hold on, shouldn't this answer be in minus? ये 1365 वाला Yes, sir. हाँ माइनस 165 है ना, माइनस 165 माइनस 480 एंड माइनस 720 माइनस 1365, तो माइनस 273x प्लस 216 इज इक्वल टू 0 टू 22x स्क्वायर माइनस 273x प्लस 216 इज इक्वल टू 0. ये हमारा आंसर आ गया. दोस्त ऑफ यू वंडरिंग 5 क्या आ गया, 5 वहाँ जाके 0 से डिवाइड हुआ है एंड इट गॉट कैंसल्ड आउट. वंस अगेन अब ये जो इक्वेशन बन गई है उसको कह रहे हैं सॉल्व करो. सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. वी प्लग इन द वैल्यूज माइनस के साथ एक और माइनस बिकॉज बी जो अच्छा सम ऑफ यू नॉट फेमिलियर विद ए बी और सी, ये ए होता है ये बी होता है और ये सी. ठीक है, तो माइनस माइनस 273 और स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 273 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 22. मूसा एम आई गोइंग करेक्ट? Yes, sir. into 2 into 22. If and when we solve this, what do we get? हमारा आंसर क्या आता है? We get 11.56, Okay, and the other one is minus 0.85. 0.81. Yes, sir. Okay, ये कंफर्म कर लेते हैं. और 11.56 and 0.85 0.85 आ रहा है. और कोई आपने कैलकुलेशन में सेकंड डेसिमल प्लेस पे कोई गलती कर दी है, प्रॉब्ली नोट डाउन करने में कर दी होगी. अदरवाइज अगर एक आंसर ठीक आ गया तो देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस कि दूसरा भी बिल्कुल ठीक होगा. कोई प्लस माइनस में या लिखते हुए गलती होगी. Sir, it's positive 0.85. पॉजिटिव 0.85. ओह हाँ, माइनस Yes. में पॉजिटिव है. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. The next question that we have is a slight breather from the typical questions that we've been doing. इसमें आइडेंटिटीज भी यूज़ हो रही हैं और बेसिक फैक्टराइजेशन भी यूज़ हो रही है. और सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है. जी मूसा, व्हाट शुड वी डू? Sir, first we will expand the upper area. It will become V into V minus 8. एक्सपेंशन नहीं, दिस इज फैक्टराइजेशन. ठीक है, एक्सपेंशन होती तो ये बन जाता. दिस इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन कहते हैं जब कोई चीज़ कॉमन ले तो आपने ये कॉमन लिया, आपने v कॉमन लिया तो दैट्स फैक्टराइज. वेल डन. आगे. So we will take midterm breaking of the denominator. हाँ ज़बरदस्त. इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? 2 इंटू नेगेटिव 24. हाउ मच इज दैट? नेगेटिव 48. और इसका सम कितना 48. चाहिए? 13 minus 13. माइनस 13. अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है आप 48 को ही उठा के उसके फैक्टर्स बनाना शुरू कर देते हो और वो फैक्टर्स ढूंढते हो जिनका आपस में डिफरेंस हो 13 का. तो 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16. मुझे तो लग रहा है कि ये डिफरेंस हमारा 13 का आ गया है. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. तो अब हम इसको कहेंगे, अच्छा यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये बाद में कैलकुलेशन का इशू ना बने. तो 2b स्क्वायर, होल्ड ऑन एक्सक्यूज मी यार. 2b स्क्वायर हमें सम चाहिए नेगेटिव 13 का. तो वे गोना से कि हम 16 के साथ नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं. माइनस 16v प्लस 3v माइनस 24. अब 4 टर्म्स हो गई हैं. 4 टर्म्स के अंदर हमने इसको ग्रुप करना है बाय 2 टर्म्स ऑन वन साइड एंड 2 ऑन द अदर. पहले दो से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2V. एक्सक्यूज मी, हाँ 2v. v माइनस 8 और अगले से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 और v माइनस 8.
तो ये दो नंबर सेम आ गए, दो एक्सप्रेशन सेम आ गए, इनको हम कंबाइन करके v माइनस एट लिख लेंगे एंड दिस बिकम्स 2v प्लस 3। तो जब मिड टर्म ब्रेकिंग की तो हमारा ऊपर हम आंसर क्या आया, v माइनस एट इंटू 2v प्लस 3। अब क्या करेंगे मूसा? Cancel v minus 8 with v minus 8. Perfect. So basically we cancel out these two values, this one and this one. We left with v over 2v plus 3. ये हमारा आंसर है, इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं। हाँ जी, perfect. This is another practical application of solutions to quadratic equations. पहले तो हमने डिस्टेंस स्पीड टाइम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी है, यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ एरिया इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर पिक्चर ए बी सी डी, मूसा नीड सम टाइम, कैन यू रीड दिस आउट? A rectangular picture ABCD is placed inside a rectangular frame. The length AB of the picture is 3 times its height x centimeter. The width of the frame is 2 centimeter. The total area of the picture and the frame is 476 cm cube. Form an equation in x and show that it simplifies to 3x square plus 16x minus 460 is equal to 0. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अब इसमें इफ आई एम रॉन्ग तो डू करेक्ट मी, आई थिंक ये हमारी पिक्चर है और ये हमारा फ्रेम है एंड दे आस्किंग अस कि इसका टोटल एरिया ये 476 है। तो हमने इन दोनों एरियाज को निकाल के कंबाइन कर देना है, या सिंपली बेसिकली पूरे रेक्टेंगल का एरिया लेने का वो कह रहे हैं। तो हाउ विल वी डू दिस? So first, to make it simpler for myself, I wrote down the length and the height. The length is 3x plus 4. The height is x plus 4 because we're finding off the whole one. 2 plus 2 is 4. So we'll add it with 4. ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप कह रहे हो ये हाइट जो है दिस इज x प्लस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक Yeah. x था, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था। जब सारा कंबाइन किया तो x प्लस 4 बन गया। सिमिलरली लेंथ कितनी है? The length is 2 plus 2 is 4. Length is 3x. 3x। अच्छा वो मुझे नहीं समझ आ रही, वो कैसे कर रहे हो? There it's written the length AB of the picture is 3 times its height x. So it will be 3x. अच्छा अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3x गिवन है, तो 4 प्लस 3x ये कह रहे हो? Yes, sir. Perfect. Now if we multiply these two values together, 3x plus 4, इसको बेसिकली रीअरेंज करके लिख लिया, into x plus 4, इस का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, यहाँ इज इक्वल्स टू आ गया, और इसका कितना एरिया है? 476. 476। जी मूसा, कैन यू लीड फ्रॉम हियर नाउ? It will be 3x square plus 12x plus 4x plus 16 is equals to 476. 3x square plus 16x plus 16 is equals to 476. And then we'll take माइनस 476. कर लेते हैं। अब बताओ। 460 minus 460. एक्सीलेंट। तो वी एग्जैक्टली शोन कि हमारा ये आंसर आ गया है। वी कैन राइट डाउन हेंस शोन। सॉल्व द इक्वेशन। यही जो इक्वेशन बनी है इसको अब सॉल्व करना है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? Quadratic formula. Quadratic formula, minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Just help me plug in the values and then just directly give me the answer. Minus 16. 16 square Okay. minus 4 into 3 into minus 460 Okay. divided by 2 into 3. And now the answers. One is 10, the other is minus 15.3. 10 and minus 15.3. Let's confirm. थोड़ा सा उससे डिफरेंट आ रहा है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक आ रहा है, 15.3 ही बनेगा। परफेक्ट। दोज ऑफ यू वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, कभी बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वंडरिंग कि यार हमारा आंसर ये क्यों नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इफ़ यू प्लगिंग इन ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, इफ़ यू प्लगिंग ऑल ऑफ दिस इन योर कैलकुलेटर ऑल एट वंस, तो वो आप
को टिपिकल एक ख़ास ब्रैकेट फॉर्मेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी मर्ज़ी से जब वो बॉड मैथ्स लगाएगा कैलकुलेटर तो ये आंसर सेम नहीं आएंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर यू ब्रेक इट डाउन. एंड हाउ टू ब्रेक इट डाउन वो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने शो किया है. गो बैक इन द वीडियो एंड वॉच दैट अगेन. अच्छा, फाइंड द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम. जी मूसा, क्या करेंगे? ये भी जो हमारे आंसर्स निकले ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? These represent x, एंड एक्स रिप्रेजेंट height, ऑफ picture. हाइट ऑफ द पिक्चर. वेल डन. अब हाइट एंड लेंथ ऑफ द फ्रेम बतानी है. तो इन दो एक्स की वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? 10. 10, बिकॉज पिक्चर की हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो हमने 10 सेलेक्ट कर ली. अब वो कह रहे हैं भाई पिक्चर की हाइट नहीं, फ्रेम की बताओ. तो फ्रेम की एक हाइट थी x+4, तो 10+4 हो गया, तो दैट्स 14. और दूसरा उन्होंने क्या मांगा है? लेंथ ऑफ द फ्रेम. लेंथ कितनी है? 3x plus 4. हाँ, और x की वैल्यू हमारी क्या है? 10. 10. तो यहाँ पे मैं 10 प्लग इन कर दूंगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 34. 34 and 14 are our answers. We are on to question number 7 now. जी मूसा, help me solve it. So we will factorize first. मेरा मतलब expand. Expand. 2x square plus 2x is equals to 12 minus 3x. चलें इसको क्विकली रीअरेंज करवा दो. 2x square plus 2x plus 3x minus 12. Now 2x square plus 8x minus 3x minus 12. मेरे पास ये 5x क्यों बन रहा है? आप 8x कह रहे हो, कंफर्म करो. आई थिंक Oh yes, it is 5x. 5x. It is 5x. अच्छा ये बताओ कि So आप then इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या मिड टर्म ब्रेकिंग करें? midterm breaking. मिड टर्म ब्रेकिंग, शाबाश. दिस इज गोइंग टू ब्रेक इनटू, हैव यू डन इट या शुड आई डू इट ऑन द राइट? Plus 8x minus 3x. एक्सीलेंट. दोज ऑफ यू वाचिंग इट आफ्टरवर्ड्स, वीडियो में देख रहे हो, अगर नहीं समझ आ रही तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग का तरीका भी ऊपर समझाया हुआ है. रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच दैट. 2x जब कॉमन लिया हमने इन दो में से तो हमारे पास अंदर रह गया x+4, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे मूसा? 3 minus 3. -3. क्यों? क्योंकि हमें अंदर x+4 चाहिए. वी गोइंग टू ट्राई ऑल कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन जो दैट वर्क्स इज 3 भी कॉमन लें एंड माइनस भी कॉमन लें. सो नाउ वी लेफ्ट विद 2x minus 3 into x+4 is equals to 0. We're going to put in a line over here. 2x minus 3 is equals to 0. x+4 is equals to 0. X is equals to -4 and x is equals to 3/2. ये हमारे दो आंसर्स हैं जो यहाँ पे आपने लिखना नहीं भूलना. प्लीज़ यहाँ पे majority of the students just leave the answer over here like this कि जी खुद एग्जामिनर ढूंढ लेगा. That's not the way to go. Plug in the values, plug in the answers as well. अच्छा मूसा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वी कैन टेक अ ब्रेक एज वेल. डू यू नीड अ ब्रेक या यू गुड टू गो? I'm good to go, sir.